हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। Start. The plaintiff's appellants are aggrieved from the refusal of the first appellate court to direct correction of the entry of mortgage in the revenue record full stop para. At the outset, comma, it must be noticed that the learned trial court decreed the suit filed by the plaintiffs in entirety, and learned first appellate court has also upheld the relief claimed by the plaintiffs qua declaration that they are owners of the property as specified in the head note as well as in the prayer made in the suit full stop para. However, comma, learned trial court has held that the entry in the revenue record showing that the land measuring 26 canals 4 marlas out of total property measuring 74 canals 3 marlas to be under mortgage with the defendants, comma, is erroneous as no evidence of the mortgage has been produced, full stop. It has also not been established how entry of mortgage came to be made, full stop para. Learned first appellate court has upheld that finding, comma, however, reversed the finding of the trial court on the ground that entry in the revenue record has not been challenged within a period of 3 years and, comma, therefore, comma, the suit qua that relief is barred by time, full stop para. Learned first appellate court has referred to section 45 of the Punjab Land Revenue Act, comma, 1887 in bracket herein after to be referred as the Act of 1887 bracket out to conclude that the limitation for correction of the revenue entry is 3 years, full stop. Section 45 of the Act of 1887 is extracted as under colon para. Suit for declaratory decree by persons aggrieved by an entry in a record, full stop. If any person considers himself aggrieved as to any right of which he is in the possession by an entry in a record of rights or in an annual record, comma, he may institute a suit for a declaration of his right under chapter 6th of the Specific Relief Act, comma, 1877, full stop para. It is apparent that section 45 of the Act of 1887 does not provide for any limitation, full stop para. In any case, comma, the revenue entries are entered only for fiscal purposes, full stop. These entries neither confer any title nor give rise to any cause of action, full stop. Once there is no evidence with respect to the land having been mortgaged, comma, the entry in the revenue record cannot be allowed to stand, full stop. The limitation for a suit for declaration praying for correction of the entry does not begin to run from the date a wrong entry has been made in the revenue record, comma,
unless there is some overt act which give rise to cause of action full stop para. Keeping in view the aforesaid facts, judgment passed by the learned first appellate court, partially dismissing the suit filed by the plaintiffs on the ground that this prayer in the suit is barred by limitation, is clearly erroneous and therefore, comma, set aside, full stop. Accordingly, judgment of the first appellate court to that extent is modified, full stop, para. Regular second appeal is allowed, full stop. ओवर. तो फ्रेंड्स ये 95 की स्पीड में लगभग हो चुका है. ठीक है, इसमें कुछ नाम वगैरह तो आए नहीं है. मार्लाज और कैनल्स, देखिए इसको होना तो चाहिए कैपिटल, लेकिन ये है स्मॉल. तो सजेशन हमारा यही रहेगा कि ये जो पीडीएफ जो हम डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये पंजाब के जजमेंट की ही पीडीएफ है. ठीक है, तो इससे आप कंसल्ट कर लो. ठीक है, और इसमें देखो, ऑब्जर्व करो कि क्या ये कैपिटल लिखते हैं और क्या ये स्मॉल लिखते हैं. ठीक है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है जजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जब चेक करते हैं तो फिर वो कैसे बताते हैं, कैसे लिखते हैं, या स्टेनोग्राफर्स कुछ अपना दिमाग लगा के लिखते हैं. तो उस वजह से आपको बुक्स में डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है. कहीं पे कुछ स्मॉल है, कहीं पे कुछ कैपिटल है. कन्फ्यूजन बहुत सारी हो जाती है कि क्या होना चाहिए. ट्रायल कोर्ट जैसे कि हमने बताया वो स्मॉल में होता है, लेकिन पंजाब की जजमेंट्स में ट्रायल स्मॉल रहता है और कोर्ट का सी कैपिटल होता है. ठीक है, तो इसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है. आप लोग एक काम करो, कुछ बुक्स ले लो आप जजमेंट की, पंजाब की, हरियाणा की, जो भी है, और जो पीडीएफ हम डाल रहे हैं वो तो सफिशिएंट है ही है. और भी बाकी जिनके पास बुक्स अवेलेबल हों उनसे आप ले लो कुछ, तो उसको ऑब्जर्व करके देखो कि क्या क्या, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें दिक्कत नहीं आनी है. कैपिटल देखिए, डेजिग्नेशन हमेशा कैपिटल होता है. जैसे फर्स्ट अपीलेट कोर्ट, इस मैटर में फर्स्ट अपीलेट कोर्ट को एक तरीके से एपेक्स कोर्ट दिखाया गया है. ठीक है, मतलब इसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं, जो आर्बिट्रेटर का जो अपना जो रोल निभा रहा है वो है फर्स्ट अपीलेट कोर्ट. ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे कैपिटल किया गया है. तो ये भी डिपेंड होता है कि मैटर में क्या चीज़ किसको सुपीरियर दिखाया गया है. जो भी सुपीरियर डेजिग्नेटेड बंदा होगा उसको कैपिटल कर दिया जाएगा. ठीक है, बाकी मार्लाज और कैनल्स को आप स्मॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही करते हैं ये लोग. तो जाहिर सी बात है, अगर पंजाब जजमेंट में जो वहाँ की जजमेंट्स हैं, इसमें अगर ये लोग कैपिटल और स्मॉल को अगर इस तरह से लिखते हैं तो आपको भी वैसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो चेक करेंगे कॉपीज़ वो भी वहीं के बंदे होंगे. है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कईयों के हिसाब से कई चीज़ें स्मॉल, कई चीज़ें कैपिटल होनी चाहिए. लेकिन एक जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, प्रॉपर नाउन, डेजिग्नेशन, क्लॉज और सेक्शन, ये सारी चीज़ें तो कैपिटल होती हैं. ठीक है, अंडर सेक्शन, ऑफ सेक्शन, एंड सेक्शन, दैट सेक्शन, ये सब, दिस सेक्शन, बाय सेक्शन, ये सब कैपिटल होता है सेक्शन. लेकिन सब सेक्शन, सब क्लॉज, ये सब स्मॉल होता है. ठीक है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं. काफ़ी सारी चीज़ें तो दिमाग में नहीं आ सकती हैं, लेकिन हम आपको जो हो सकता है वो हम आपको बता देते हैं. तो इतने आप लोग कमज़ोर नहीं हैं कि कैपिटल्स में हमेशा मिस्टेक करेंगे. एक आध कैपिटल आपके नज़र से छूट सकता है, जिसको कि आप ऑब्ज़र्व करके देख सकते हो कि हाँ, इन जजमेंट्स में, क्योंकि कई लोग हैं जो हर जगह का एग्ज़ाम देते हैं, तो सब ने जजमेंट्स को फॉलो किया होगा, उनको लिखा होगा, तो उसमें उनको पता चला होगा कि हाँ, यहाँ पे ये कैपिटल है. भाई कुछ तो सीखे होगे ना शॉर्ट हैंड सीखते हुए, है ना. तो वो जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो भी बहुत यूज़फुल है. बाकी सब ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है. आप थोड़ा सा कंसल्ट कर लो, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली कैपिटल और स्मॉल में. ठीक है, और रही बात किसी भी एक्ट के बाद जब ईयर आता है ना, तो एक्ट के बाद कॉमा लग जाता है. ठीक है, ये भी एक बेसिक चीज़ है. देयरफॉर के आगे पीछे दोनों जगह कॉमा लगेगा. हाउएवर के बाद भी कॉमा लगता है ज़्यादातर. ठीक है, वैसे ही सब कॉमा वॉमा सब वो बोलेंगे, आपको अपने से कुछ नहीं लगाना है. आप देखोगे, आप वहाँ जाओगे ना, जब जैसे उन्होंने मिस्टेक के लिए काउंट करने के लिए बताया है ना कि कैपिटल को हटा दीजिए, कॉमा और जितने भी पंक्चुएशंस हैं, वो अगर मिस्टेक वो काउंट कर रहे हैं तो वो उसको वहाँ डिक्टेट करने वाले हैं. ठीक है, इससे ये साबित होता है. इसलिए कॉमा वगैरह वो लोग बोलेंगे. और जो हमारी डिक्टेशंस हैं 95, कभी कभी हम 98 कर देते हैं, तो वो इसीलिए है कि आपको वहाँ पे 80 के डिक्टेशन या 82 का हो जाए तो भी कोई दिक्कत ना आए. और यकीन मानिए कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, तो आप लोग कॉमा वगैरह सब लगा लोगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है.
बाकी इसमें और कुछ नहीं है। लर्नेड हमेशा कैपिटल फुल स्टॉप के बाद आता है तो कैपिटल होगा, अदरवाइज वो स्मॉल होगा। ओके, और कुछ नहीं है इस मैटर में बताने लायक। चलिए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, आपके आंसर्स कर देते हैं। तो देखिए शुगर केन कैसे बनेगा। शुगर केन बनेगा थ्रो द लाइन अपवर्ड एस एच जाएगा, ठीक है, मतलब श, थ्रो द लाइन अपवर्ड श जाएगा और उसमें गे आर की डबलिंग करके एन का हुक लगा दीजिए, वो पूरा शुगर केन हो जाएगा, ठीक है। अगर केवल गे आर बनाते हैं आप, मतलब गे में आर का हुक, तो वो शुगर हो गया, उसकी डबलिंग, गे की डबलिंग करके एन का हुक लगा देंगे तो वो शुगर केन हो जाएगा। ओके, सुपर एनुएशन कैसे होगा, आर की तरफ से सर्किल लगाइए और पी थ्रो द लाइन जाएगा, ठीक है, एस पी आर वाला सर्किल आर की तरफ, जहां आर का हुक लगता है पी में, वो पूरा सर्किल बनाकर पी थ्रो द लाइन ले जाइए और एन बनाकर एन में ही शन का हुक जोड़ दीजिए, वो सुपर एनुएशन एक ही में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने रोहित जी आपको बता दिया है। और स्पीड 110 है, हाँ ठीक है, 110 के ऊपर है तो क्या दिक्कत है भाई, लिखो ना, कोई दिक्कत थोड़े ना। देखिए हमारी मैक्सिमम डिक्टेशन की कोशिश हमारी यही रहती है कि जो हम स्पीड रिक्वायर्ड है हम उससे ज़्यादा ही देते हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि ज़्यादा में आप लिख लो, कम में आपका हाथ नहीं चलना चाहिए, कम ना मिले ज़्यादा ही रहे, तो ये हमारा मोटिव ही रहता है। इसीलिए आपको डिक्टेशन ज़्यादा स्पीड की लग सकती हैं एपीएस की, ठीक है। थैंक यू, सो यू वेलकम करण जी, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट सुनकर, पढ़कर। और मिस्टेक जिनकी 5 आ रही है, इट्स मी, बहुत क्या बात है। ऐसे ही मिस्टेक्स अपने बना के चलिए क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और अंडर 10 मिस्टेक में ही क्वालिफाई होगा, ठीक है, इसलिए परेशान मत होइए, बहुत अच्छे से लिख पाएंगे आप सभी लोग। और रोमन वर्ड्स कैसे टाइप होते हैं, जैसे 5 आपको टाइप करना है, 6 टाइप करना है, तो कैपिटल वी करके कैपिटल आई कर दीजिए, तो ये 6 हो गया, कैपिटल वी रहेगा तो वो 5 हो जाएगा। अगर स्मॉल में आप करते हो तो वो स्मॉल रोमन नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। और जिनका डिक्टेशन नहीं लिखा गया है वो परेशान मत होइए, आप आगे कभी तो लिख पाएंगे अच्छे से, इसलिए टेंशन मत लीजिए, इसमें कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। और जैसे, हाँ, जैसे एक कमेंट आया है अलोंग विद और अप टू, ये एक वर्ड है कि नहीं, ये है अलग अलग वर्ड, ठीक है। इसको आप अलोंग विद को अलग लिखिए, अप टू को भी अलग लिख सकते हैं, ये अलग अलग वर्ड है, इनकी एक साथ वर्ड, ये एक चलन चालू हो गया कि एक साथ इसको लिख दिया जाएगा। तो वो जजेस, हमने बताया ना, जजेस के अकॉर्डिंग होता है भाई, जैसे आप ही जज बन गए, आपको अगर मन है अलोंग विद को एक साथ लिखने का, अब उनकी स्कॉलर, अब उनके विजडम पे तो हम शक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनके लैंग्वेज, वो लोग खुद अपने लैंग्वेज को चालू कर देते हैं अपने स्टेनोज से लिखवा कर, ठीक है। तो ये सब वहीं से शुरू हुआ है, बाकी इसमें कोई भी एक साथ लिखने का कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अलोंग विद अलग लिखिए, अप टू भी अलग लिखिए, दोनों सही होगा, ठीक है, एक साथ मत लिखिएगा, अलग अलग लिखिएगा, ओके। और 110 में इतनी स्पीड, चलिए अगर 110 में आप 115 लिख लेती हैं तो अच्छी बात है, अगर 110 नहीं, कई सारी कंप्लेंट्स ऐसे आई कि हमारी डिक्टेशन लोग नहीं लिख पाते हैं, बाकी कोचिंग में 110 की लिख लेते हैं, तो चलिए तो अच्छी बात है, कुछ नई चीज़ आपको मिल रही है, आप लिखिए, और जो भी एग्ज़ाम का डिक्टेशन होगा उसमें तो आप कंफर्टेबल फील करोगे ही करोगे, ठीक है। आपका कमेंट वैसे बहुत अच्छा लगा। और शुगर मिल, देखिए पिछले मैटर में जो शुगर मिल आया था वो हर जगह कैपिटल इसलिए होगा क्योंकि शुगर मिल के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है, इसलिए वो कैपिटल होगा। ये इतना तो मैटर देख के समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ कैपिटल होनी है क्या नहीं होनी है। सिर्फ 3-4 या 2 से 4 ही कैपिटल्स में आप कंफ्यूज होंगे, वो ऑब्जर्वेशन से दूर हो जाएगा, ठीक है। और 120 की स्पीड कैसे बनाएं, तो 120 की स्पीड बनाने के लिए देखिए आपको 135, 138, 138 की स्पीड में अगर आप कोचिंग जाते हैं तो आपको घर के होमवर्क में 140 का डिक्टेशन लिखना होगा, ठीक है, सीधी सी बात, 120 का डिक्टेशन अगर पाना है, हासिल करना है तो। और कोचिंग में जाके जब आप एज ए टेस्ट कोचिंग के मैटर को लेते हो तो वहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करोगे। 1 महीना तक 140 की स्पीड में लिखिए, 135 प्लस की स्पीड में लिखिए, 120 में आप कवर करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, अब हम चलते हैं, अगली डिक्टेशन में मिलेंगे। रात को देना है एक्सेल की वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलिएगा, कमेंट ऐसे ही करते रहिए।